Noted animal activist and BJP MP Maneka Gandhi has landed in hot water. An undated video of Maneka Gandhi is going viral, where she can be heard leveling some scathing allegations against the International Society for Krishna Consciousness, the ISKCON. The Saffron Party lawmaker has alleged that ISKCON is selling cows from its gaushalas, cow sheds to butchers. मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है ISKCON। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। ISKCON is selling all its cows to the butchers. जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। This is the video we were talking about. The allegation has been strongly refuted by the temple body linked to Hare Krishna movement. They have called the tirade unsubstantiated and false. Hare Krishna. ISKCON would like to refute in the strongest terms possible the false and baseless allegations levied by Mrs. Maneka Gandhi about the cow care standards and practices of ISKCON. ISKCON, for the last 50 plus years, has been a pioneer around the world in promoting cow protection and vegetarianism in many different parts of the world where meat and beef are staple diet. It is an entirely false allegation that any of these cows, bulls or calves are sent to slaughterhouse or butcher house. It is never done so. Where does the truth lie? Time Star decided to do a reality check. Here's what we found. मेनका गांधी ने कहा कि वो जिस गौशाले में गई थी वहां पे एक भी बछड़ा नहीं था, जिसकी रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम वृंदावन के ISKCON के गौशाले में पहुंचे और हम यह देखने आए थे कि क्या यहाँ बछड़े हैं। मेनका गांधी ने जो बयान दिया है, क्या उस बयान से मिलते जुलते हालात इसको जो वृंदावन में जो ISKCON का जो गौशाला है क्या वहाँ वो हैं। लेकिन हमने यहाँ पाया कि यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ बछड़े ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 30 की संख्या में ये बछड़े हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये बछड़े यहाँ मौजूद हैं और इन्हें यहाँ अलग एक बाड़े में रखा गया है जहाँ पर इनकी सेवा की जाती है। इन्हें यहीं पे चारा दिया जाता है और यहीं से ये फिर जो तमाम जो दुधारू गायें हैं, जो दूध देती हुई गायें हैं, उनके पास इन्हें भेजा जाता है जहां ये दूध पीते हैं। क्योंकि यहाँ के जब हमने मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ का कोई भी जो दूध का जो आइटम है या दूध है वो उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि वो जो दूध है उन दूध का इस्तेमाल या तो जो ठाकुर जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके प्रसाद के लिए उसका इस्तेमाल होता है, या फिर जो बचा हुआ दूध होता है वो ये बछड़े इस्तेमाल करते हैं। Let's open this up. We have Haresh Govinda, spokesperson for the ISKCON. We also have Rajendra Shah, senior member of the Animal Welfare Board, joining us from Gujarat. Aishwarya Jain also joining us live on the broadcast. Aishwarya, to you first. Maneka's claims have been refuted by ISKCON. When will Maneka Gandhi present the proof? Well, that's the answer that Maneka Gandhi has to give, but no comments had been made after the ISKCON had clearly had refused the claims made by Maneka Gandhi, who is also an animal rights activist, and she clearly, had not commented any such thing as far as the earlier claims were made, because it was in the reality check by Time Star also clearly it had come out that no calf, no cow had been sent to the butcher houses, which Maneka Gandhi claimed earlier in the video circulated, in which she clearly stated that when she went to Anandpur, ISKCON temple, she did not found any calf, and this clearly means that the cows had been sold out to the butcher shops, which clearly stands, which clearly stands to be on a mark. But on the other side, it was ISKCON temple who had given a clarification. Still the response has to come. So joining us, let's see how this develops. We'll keep coming back to you, but Rajendra Shah, what do you make of what Maneka Gandhi has said? मुझे लगता है कि मेनका जी की बात सही है, क्योंकि जो अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, उसमें जो बछड़े की संख्या है वो बहुत कम दिखती है। तो इतनी बड़ी गौशाला में इतना बछड़ा नहीं हो सकता, उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए।
और अगर और उसके पास जो और बछड़े थे वो उसने कहाँ पर रखे हैं, वो भी एक सवाल आता है। क्योंकि इतना बछड़ा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो ट्रैक्टर के खेती होती है उसमें बछड़ा का उपयोग ही कम हो रहा है दिन ब दिन। तो ये बछड़े का आखिर कहाँ जाते हैं, वो एक बड़ा सवाल है। बट राजेंद्र जी, इस्कॉन ने तो अपनी तरफ से कहा है कि ये बेबुनियाद बातें हैं और अगर मनेका गांधी के पास सबूत है तो वो सबूत दें। हमारे पास इस्कॉन के स्पोक्सपर्सन है हरेश गोविंदा। मिस्टर गोविंदा, व्हाट वुड यू लाइक टू से? Yeah, so whatever she has said, this all are false information and they are wrong statements. So ISKCON totally refutes this. Her statement, there are so many, there are almost more than 60 gaushalas in all over India. Like you also done reality check while I was saying this. So, you can go to any of our gaushala. We have many gaushalas in Gujarat also, and in all over India we have 60 gaushalas. We have cows, we have calves, and we have bulls also. So, and there are many cows which we have brought in our gaushalas after being found abandoned or injured or rescued, right? So we are taking care of all these cows and cows, either male or bulls, either male or female. Like it is for us taking care of our cows is like a bhakti, is like a service. Like we are. राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि गाय की देखभाल करना उनके लिए भक्ति जैसा है। आप कह रहे हैं कि गाय और बछड़ों की संख्या कम हो रही है। नहीं, ये बात उनकी मैं मान लेता हूँ सही है। तो इतनी कम संख्या में बछड़े नहीं होने चाहिए। तो बछड़े और उसने कहाँ पर रखे हैं, और कोई जगह उसमें रखा है? इतनी जो संख्या है वो तो बहुत कम दिखती है। तो कहीं ना कहीं उसने भेजा होगा। तो कहाँ भेजा है? उसकी आस्था है, गौ प्रेमी है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतनी संख्या में जो बछड़े दिख रहे हैं वो तो बहुत कम है। और मैंने ये भी बताया कि आजकल खेती में ट्रैक्टर का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो बछड़े जाते कहाँ हैं? तो उसको आधार देना चाहिए। मिस्टर गोविंदा, क्विकली आंसर दैट चाहिए। या हम लोगों उनका आंसर ऑलरेडी आप देखिए। वहां पर जो जिस गौशाला की बात की इन्होंने अनंतपुर में, राइट, तो वहां पर हमारे आप देख सकते हैं काफी सारे एमपीज, जो वहाँ के एमपी है, वो वहाँ के कलेक्टर, लोकल ऑफिसर्स है, वो सब जा चुके हैं। और हमने हमारी मीडिया में हम लोगों ने भी प्रस्तुत किए थे कि उन लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया। तो वो लोग जाके देख चुके हैं सारी चीजें, राइट, और उन लोगों ने उल्टा हमें हमारी प्रशंसा की है। Okay, so you believe that there is no case, and if there is any, the onus is on Maneka Gandhi to come out with evidence if there is some. Okay, stay with us. We've also opened our call-in lines. We want to hear from our viewers. Mr. Vinod now joining us from Bengaluru. Sir, good evening. This is your channel. Please go ahead. I think we've lost the line, but राजेंद्र शाह जी, देखिए, ISKCON की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर कुछ गलत आरोप आपने लगाया है, अगर आप मानते हैं कि हम बुचर्स को दे देते हैं काव, जैसा कि मनेका गांधी का कहना है, तो सबूत भी तो उन्हीं को देना चाहिए। नहीं, अगर मेनका जी सबूत नहीं दे रही है तो ISKCON वाले भी सबूत दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कितनी संख्या है, दैट इज मेन क्वेश्चन। और इतनी संख्या जो उसके पास काव है, तो उसके बच्चे कितने हुए, तो उसका भी कैलकुलेशन के पास होगा, उसके पास भी रिकॉर्ड रजिस्टर होगा कि इतनी काव है, इसके इतने बछड़े हुए और हमने यहाँ पर रखे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस अनंतपुर की बात कर रहे हैं तो उसकी फिगर्स भी हमने रखी हुई है। वहाँ मिल्किंग काउस जो है वो 18 है, नॉन मिल्किंग काउस जो है वो 247 है, वहाँ 72 बुल्स है, 75 काउस है, 40 मेल और 35 फीमेल। ये तो हम लोग रख रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको। और काफी सारे ऑफिसर्स वो लोग भी खुद भी वहां जाके चेक कर चुके हैं, तो उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, उन्हें तो ऐसा कहीं भी एविडेंस नहीं मिला। कौन से डिपार्टमेंट से आपके यहाँ चेकिंग में आए थे? कौन सा डिपार्टमेंट था? आप देखिए, डॉक्टर्स गए थे वहां पर, वेटरनरी डॉक्टर्स गए थे, वहां के एमपी गए थे। हमने सारा प्रूफ हम लोगों ने उनके नहीं, एमपी है, देखिए वो डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते हम। एमपी को एनिमल हस्बेंड्री से कोई आपके यहाँ आए? डॉक्टर जो है वेटरनरी डॉक्टर्स जो है, राइट, जो डॉक्टर्स है वो भी तो वहां जाके चेक किए हुए। Okay, let's hear from our viewers. Gentlemen, 1 minute. Kamlesh ji is now joining us from Bengaluru. Sir, good evening. गुड इवनिंग। अगर आप लोग गौशाला के पर इतना बात करते हैं, बाकी जानवर के बारे में इतने बात करते हैं, बकरीद के दिन में बकरियों क्यों नहीं बचा पाते आप लोग? ओके, राजेंद्र शाह जी, उस पे अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो मैं आऊंगा आपके पास। राधिका इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस फ्रॉम
Bengaluru. Ma'am, good evening. This is your channel. Go ahead. I'm from Mangaluru. Bengaluru, I beg your pardon, ma'am. Go ahead. Good evening. Yes. Now I know from where Rahul Gandhi has the ability to shoot and scoot. See, if she has a problem with that, she should provide enough proof. She can't say that this is happening. Adequate proof has to be given. Just because it's in a bad condition, it need not be that they are selling. That she have proof. That's it. That's exactly what we are asking on Times now, that if Maneka Gandhi has made these claims, she will have to back it with some proof. Rajendra Shah ji, अभी तक तो उनके तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं आया है. किसकी तरफ से? मनेका गांधी जी की तरफ से. नहीं, उसकी तरफ से आया नहीं है, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो इस्कॉन वाले इतने गोप्रेमी है, इंटरनेशनल उसका काम मैं जानता हूँ, तो उसको अपनी तरफ से ही जो भी फैक्ट है वो बताना चाहिए. वो मेनका गांधी के ऊपर क्यों डालते हैं? अपनी तरफ से जो भी फैक्ट है उसका रिकॉर्ड होगा, उसका रजिस्टर होगा, कितनी गायें थी, कितनी डेट हुई, वो सब गौशाला में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि इतनी थी, इतना बछड़ा आया, इसके मेल आया, इतना फीमेल आया, कितनी डेट हुई, वो सब रिकॉर्ड रहता है. मिस्टर गोविंदा, यस, तो आप चेक कर सकते हैं ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं. जैसे मैंने अभी आपको अनंतपुर हमारी गौशाला जिसके विषय में चर्चा हो रही है उसका मैंने आपको अभी डिटेल्स बताई, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए थे, राइट. तो उस प्रकार से अब हमारे पास सब कुछ नोट डाउन है ही ऑलरेडी. हम मना कर रहे हैं. हमने कब ऐसा बोला कि हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है? यू कैन चेक. आप खुद जाइए गौशाला के अंदर इस्कॉन की, आप खुद जाके चेक कीजिए, आपको खुद को पता चलेगा. Okay, Mr. Narayan is now joining us from Hyderabad. A viewer joining us with his views. Sir, go ahead. Good evening. Shall I go ahead? Yes, sir. Go ahead, please. ऐसा है, मेनका गांधी जैसा जो पॉलिटिकल लीडर है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उतना बड़ा एलिगेशन नहीं डालना चाहिए. He has to show the proof, perfect proof. इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में राइट उतना जो है ना वो एलिगेशन करना कोई ठीक नहीं. ओके, क्या मेनका गांधी स्वयं कोई एक गौशाला मेंटेन करता है? कर रहे क्या? राइट, उनको मालूम होता. इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन जो है ना, वो जो है गायों को बच्चों को बेचता, इतना बड़ा एलिगेशन कर सकते क्या? प्रूफ. Without proof, where is the proof? Mr. Rajendra Shah, everybody is demanding the proof. If Menka Gandhi said what she said and it's on tape, it's gone viral, kahan se pata laga? Who told Menka Gandhi? What are the numbers, the details? Subramaniam now joining us from Kochi. Sir, good evening. Yes, good evening, sir. Sir, the problem with Menka Gandhi is she is more bothered about all these animals. But for humanity, she has no concern. Actually, we, the Indians, are suffering from the dog menace in the streets of Kerala. You know how many people have died because of dogs. This lady has the biggest problem creator. She has more interest of animals. I am not against animals, but the way she does all this nonsense, and she has no concern for humans. There is a for humanity. What does she have for cows? What proof does she have for these allegations? That is my concern. I understand, sir. Sentiments conveyed. Mr. Harish Govinda, thank you for joining us. Rajendra Shah, thanks for joining us with your views. Let's see how this unfolds. Will Menka Gandhi put out the proof that people want to see now? We're taking a short break on Times now. Stay with us.